Hello everyone. So in the last class we did the half wave rectifier. Now today we will do the full wave rectifier. Now what is a full wave rectifier? There are basically two types of full wave rectifier. One is the center tapped full wave rectifier and another one is the bridge wave rectifier. तो आज हम दोनों पढ़ेंगे. सबसे पहले we will start with the center tapped full wave rectifier. Now what is a center tapped full wave rectifier? Now यहाँ पर क्या होता है? This circuit uses two diodes. ठीक है? This circuit uses two diodes which are connected to the center tapped secondary winding of the transformer. I am repeating again. The circuit of a center tapped full wave rectifier uses two diodes which are connected to the center tapped secondary winding of the transformer. Now you should know what is the meaning of center tapped. ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हाफ वेव में वी हैव यूज्ड द सिंगल डायोड. In full wave rectifier we are using two diodes instead of one diode. इसका सर्किट कैसा होता है? देखो, this is the circuit of a full wave rectifier. Here we are using two diodes and this is the center tapped full wave rectifier. मतलब ये देखो, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफॉर्मर की, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है. Here also we are using step down ट्रांसफॉर्मर. ठीक है? अब यहाँ पर यू शुड नो द मीनिंग ऑफ सेंटर टैप्ड. सेंटर टैप्ड का मतलब क्या होता है? जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफॉर्मर की, इट इज टैप्ड एट द सेंटर. Exactly at the center it is tapped. The secondary winding of the transformer is tapped exactly at the center. इसको हम करते कैसे हैं? देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तुम अपनी बुक में भी लिख सकते हो, एग्जाम में ये चीज लिख देना. When an additional wire is connected across the exact middle point of the secondary winding of the transformer, it is called center tapped. जब हम सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ट्रांसफॉर्मर की, उसके एग्जैक्टली मिडल पॉइंट पे एक एडिशनल वायर को कनेक्ट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि अब ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इट इज नाउ सेंटर टैप्ड. वायर जो है, इट शुड बी एट एग्जैक्ट मिडल ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग्स. और वो जो हमारी वायर होती है वो एकदम एग्जैक्टली सेंटर पे है. ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? जो सेंटर टैप है ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, इट इज यूजुअली टेकन एज द ग्राउंड और द जीरो वोल्टेज रेफरेंस पॉइंट. ठीक है? द सेंटर टैप ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर is usually taken as the ground or zero voltage reference point. ठीक है? So it is at 0 volt. I am talking about the center tap. ठीक है? Which is forming the neutral point for the winding. इसका मतलब क्या है? देखो, जब हमारा डायोड, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है. जब हम क्या कर रहे हैं, ये सिचुएशन कब होगी? ये होगी जब हमारा डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है. ठीक है? दैट मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, तब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा. एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है? तो दिस is representing the center tap of the secondary winding of the transformer and this is at 0 volt. ठीक है? इतना पता होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? देखो, ये 0 वोल्ट पर है. देखो यहाँ मैंने दो चीजें लिखी हैं, V is equal to V naught sin omega t और यहाँ पर भी लिखा है V is equal to V naught sin omega t. इसका मतलब क्या है? It should be noted that जो वोल्टेज है between the center tap, that means this point, the voltage between the center tap and the either end of the secondary winding, that means either ये end या ये end जो होगी voltage, that is half of the secondary voltage. ये जो हमारी voltage है
that is the voltage between the center tap and the either side of the secondary winding, वो exactly half होगी of the secondary voltage. मतलब इनिशियली अगर हम वोल्टेज जो है इनपुट एसी वोल्टेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट इट बी 2V0 sin ओमेगा टी, ठीक है। हम इंटरेस्टेड किस वोल्टेज पे होते हैं, वोल्टेज एट द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। अब इसको हमने, या यू कैन से दैट दिस इज द वोल्टेज, टोटल वोल्टेज एट द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। इनपुट एसी वोल्टेज है हमारी, उसको हमने पास किया थ्रू अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इफ वी वांट टू स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज, अगर स्टेप अप करनी है देन वी कैन यूज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, यूजुअली वी यूज step down transformer. So this step down transformer will step down the input AC voltage. Now let's say the voltage now is V is equal to 2V0 sin omega t. अब क्या है हमारे पास, जो वोल्टेज है between the center tap and the either end of the secondary winding, ये exactly इसका हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो let's say this voltage is VI, ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमारी वोल्टेज हो गई VI। अब इन दोनों के बीच में जो हमारी वोल्टेज होगी वो V होगी, वेयर V इज इक्वल टू VI अपॉन 2, इसको समझो, ठीक है। तो V को जो है हमने सिंप्लिसिटी के लिए लिख लिया V0 sin ओमेगा टी, ठीक है। हम V0 अपॉन 2 sin ओमेगा टी लिखते तो हमने V0 sin ओमेगा टी ले लिया V को, और VI को 2V0 ले लिया, ठीक है। ये तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है, वी हैव टू डायोड्स एंड दे आर कनेक्टेड टू द लोड रेजिस्टेंस RL, जहां से वी विल मेजर द आउटपुट DC वोल्टेज, ठीक है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, हाउ AC इज कन्वर्टेड इनटू पल्सेटिंग DC, वो अब हम देखेंगे। ये हमारी वेव फॉर्म आएगी, ठीक है। दिस इज आवर इनपुट AC वोल्टेज, ठीक है, ये हमारा आउटपुट DC वोल्टेज है, ठीक है। ये जो हमारा इनपुट AC वोल्टेज है ना, दिस इज बेसिकली V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या होगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल, जब हम पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, देन दैट मींस A is at positive terminal, B is at negative terminal, ठीक है। So that means P type region जो है it is connected to the plus and this is connected to the and negative here. So we can say that during the positive cycle the diode D1 is forward biased and D2 is reverse biased. So D1 will conduct and will act as a short circuit. D2 जो है it will not conduct being reverse biased, so it will act as an open circuit, ठीक है। तो D1 जो है वो तो हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा ऐसे, D2 हमारा ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा ऐसे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो क्या होगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, ये जो पॉजिटिव एरो, ये जो हमारे सॉलिड एरोज है ना, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो सर्किट ओपन है तो करंट यहाँ नहीं जाएगा, तो करंट यहाँ जाएगा और फिर यहाँ। तो RL के अक्रॉस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट की डायरेक्शन क्या है, ये जहां पर हमें आउटपुट मेजर करना है, ठीक है। तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग टू दिस इनपुट वेव हमारे पास ये आउटपुट वेव आ गई, ठीक है। अब क्या होगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पर डायोड D1 जो है इट विल बिकम रिवर्स बायस्ड, D2 विल बिकम फॉरवर्ड बायस्ड। सो D1 विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, D2 इज एक्टिंग एज एन शॉर्ट सर्किट। तो क्या होगा, करंट अब कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ ओपन सर्किट है, इस यहाँ पे नहीं जा पाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। सो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑल्सो जो करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस RL, उसकी डायरेक्शन जो है ये है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब है इनपुट वोल्टेज का और नेगेटिव हाफ साइकिल है, दोनों ही केसेस में जो करंट है वो यूनि डायरेक्शनल है। दोनों ही केसेस में RL के अक्रॉस जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो मैग्नीट्यूड जो है करंट का वो तो चेंज होगा, बट नाउ करंट या वोल्टेज जो है दे विल नॉट change its, they will not change their direction. So that means AC is converted into pulsating DC. Pulsating क्यों है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है it is still changing with time, what is not changing is the direction, ठीक है। डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही। नाउ
when we are measuring the output across the load resistance RL. Now this output जो है, it is not changing in direction, it is only changing in the magnitude. So we can say that AC is converted into pulsating DC. और यहाँ पर जो है दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल्स और नेगेटिव हाफ साइकिल्स जो है इनपुट के यूज हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि यहाँ पे फुल वेव जो है हमारी वो यूज हो रही है. तो जो हमारी ये आउटपुट वोल्टेज है इसको हम कह सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर डीसी वोल्टेज. जो मैंने बताया वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ. The two junction diodes, they are connected to the secondary of the center tap transformer. So during the first half cycle, A is positive, B is negative. So D1 is forward bias, D2 is reverse bias. So current flows due to the diode D1. ठीक है, और हमने थिक एरो हेड से उसकी डायरेक्शन दिखाई. ठीक है, and then during the next half cycle, that is the negative half cycle, diode D1 is reverse bias, D2 is forward bias. So current flows due to diode D2. इसकी डायरेक्शन जो है करंट की, दैट इज शोन बाय द डॉटेड एरो हेड्स. ठीक है, दोनों ही डायरेक्शंस मैंने क्लियर करी थी और दोनों में ही हमने क्या देखा, जो करंट है वो फ्लो कर रहा है थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL इन द सेम डायरेक्शन. दोनों ही केसेस में करंट की डायरेक्शन जो है ये थी. सो दैट मींस करंट जो है इट इज यूनिडायरेक्शनल. So therefore the output voltage is developed across the resistance RL for the full input wave, as half sine waves are in phase with current pulses. So and C जो है so this process is called full wave rectification. यहाँ पर इसका ग्राफ, यहाँ पर इसको हमें ग्राफ गिवन है और you can say that this is the way of drawing full wave rectified voltages. This is the output, this is the input. Input voltage हमारी AC voltage है. ठीक है, during the positive half cycle, this is the voltage because of the diode D1. D1 is forward biased. ठीक है, during the negative half cycle, we are getting this voltage because of the diode D2. Here D2 is forward biased, D1 is reverse biased. This is the output due to the diode D1. This is the output due to the diode D2 and so on. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पीरियड, यहाँ पे साइकिल जो है किसके बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा जो साइकिल है इसके बाद रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो इसका पीरियड कितना है, ये दिस इज द पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो हमारा ये पल्स है इसको जो ये जो है कितने टाइम में हो रहा है. ठीक है, दैट इज द टाइम पीरियड. ठीक है, इसके बाद जो है ये जो हमारी पैटर्न है इट इज रिपीटिंग. ठीक है, दिस इज पीरियोडिक पैटर्न, दिस इज रिपीटिंग. तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस वेरिएशन फ्रॉम. तो ये क्या है, दिस इज एट t इक्वल टू 0, दिस इज एट t इक्वल टू t by 2. सो हेयर टाइम पीरियड इज t by 2 नॉट t. ठीक है, यहाँ हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें जो हमारा टाइम पीरियड था दैट केम आउट टू बी कैपिटल T. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड आया है दैट केम आउट टू बी T अपॉन 2. आई होप ये सबको क्लियर है कि यहाँ पर ये T अपॉन 2 क्यों आया है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड. दिस इज द टाइम टेकन बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट और द डायरेक्ट करंट. इट इज द टाइम टेकन बाय द करंट और voltage to complete one cycle. ठीक है, time taken by the current or the voltage to complete one cycle, that is the time period. तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, t by 2. उसके बाद फिर से ये साइकिल जो है हमारी रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी ये साइकिल या वेव फॉर्म जो है रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी ये साइकिल हमारी रिपीट हो रही है. तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइम पीरियड जो है इट बिकम्स t by 2. हमारा वोल्टेज कितनी है, V नॉट, दिस इज V नॉट साइन ओमेगा t. ठीक है, सो व्हेन t इज इक्वल टू t अपॉन 2 व्हाट विल बी साइन ओमेगा t. एट t इज इक्वल टू t by 2, ओमेगा हमारा कितना होता है 2 pi by t, where t is the time period. ठीक है, स्मॉल t है हमारा t अपॉन 2. ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर अ फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज.
which is the time taken by this voltage to complete one cycle. 2 से 2 cancel out हुआ तो it becomes sin pi. V naught sin pi means 0. Sin pi is 0. So at t is equal to t by 2, our value is 0. Okay, so this completes one cycle. अब हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में कैलकुलेट करी थी, द एफिशिएंसी, द रिपल फैक्टर एंड सो ऑन. ठीक है. सो एक चीज और बता देती हूँ, वोल्टेज हमारी है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. और हमारा करंट क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर एफ प्लस आर एल. ठीक है, जैसे हमने पहले किया था. एक टाइम पे जो है एक ही डायोड कंडक्ट करेगा, दूसरा डायोड कंडक्ट नहीं करेगा. ठीक है. तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड जो है एक ही डायोड की कंसीडर करी जाएगी. So the current at any time t is represented by I naught sin omega t, and this is the unidirectional current, and I naught is V naught upon RF plus RL. जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में करा था, तो तुम एक तरीके से इसको रिवीजन भी मान लो हाफ वेव रेक्टिफायर की. ठीक है. where RL is the total, where RL is the load resistance across, where RL is the load resistance, RF is the dynamic forward resistance of the diode. So the total resistance becomes RF plus RL. So I naught is the peak value of the current, V naught is the peak value of the output voltage. तो अगर हमें यहाँ पर करंट को प्लॉट करना है तो I can plot the current. ठीक है. सेम पैटर्न होगा, बस क्या डिफरेंस होगा, I naught जो है हमारा that is less than V naught. ये जो पीक वैल्यू है हमारी I naught, it is less than V naught, since V naught is divided by the resistance when we have to find I naught. So I naught is always less than V naught. So the pattern will be same in the output, only the peak value जो है वो हमारी decrease हो जाएगी when we are plotting current. So during the positive half cycle or the first half cycle, when t is lying from 0 से t by 2, in that case diode D1 is forward bias, D2 is reverse bias, so current is flowing from the diode D1. So I D1 is I naught sin omega t, and D2 जो है it is acting as an open circuit, so current flowing through the diode D2 will be 0. ठीक है. So ये हमारा है during the positive half cycle. Now what happens during the second half? During the second half, that means when t is going from t by 2 to t, यहाँ पर हमारा टाइम हो गया t. So during the next half cycle from t by 2 to t, हमारा जो करंट है that is flowing because of the diode D2. D1 जो है it is reverse biased, it will not conduct, it will act as an open circuit. So I D1 is 0. इसको करेक्ट करो, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा. करंट जो है हमारा यूनिडायरेक्शनल है, इट इज नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन चेंज कर दी तो फिर ये डीसी रहा ही नहीं, एसी ही हो गया. तो आई D2 जो है हमारा that is I naught sin omega t. That means जो करंट है हमारा during the positive half cycle वो भी होगा I naught sin omega t, and during the next half cycle वो भी होगा I naught sin omega t, क्योंकि at a time only one diode is conducting, the other diode is non conducting. ठीक है. जब t हमारा t by 2 से t के बीच में लाई करेगा, then omega t जो है हमारा pi से 2 pi के बीच में लाई करेगा. ठीक है. नेक्स्ट अब हम निकालेंगे द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. एवरेज वैल्यू देखो यहाँ पर जो है ना ये गलत दे रखा है, इस तरीके से नहीं करना एग्जाम में, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना एग्जाम में. सिंपल एवरेज वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है. वो क्या होता है हमारा इंटीग्रल 0 से, अब हमारा टाइम पीरियड कितना है यहाँ t by 2, हर t by 2 के बाद साइकिल जो है रिपीट हो रहा है. So 0 से t by 2 I naught sin omega t dt divided by integral 0 से t by 2 dt. ठीक है. ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, बस यहाँ t की जगह t by 2 है. why? Because for a full wave rectifier the time period is t by 2. After every t by 2 the cycle is repeating itself. तो ये जो डिनोमिनेटर है हमारा इंटीग्रल 0 से t by 2 dt, इट बिकम्स t by 2. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया ITC का,
So the average value or the DC value of current IDC is equal to integral 0 से t by 2 I naught sin omega t dt divided by t upon 2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर में ऑलरेडी सॉल्व किया था. इंटीग्रल 0 से t by 2 I naught sin omega t. ये मैं दिखा देती हूँ. ये वाला था ना, इंटीग्रल 0 से t by 2 I naught sin omega t. इसका हमारा इंटीग्रेशन कितना आया था? इसका इंटीग्रेशन आया था 2, यहाँ पे 2 आया था ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था. सो इट केम आउट टू बी 2 I naught अपॉन ओमेगा. ठीक है, ओमेगा भी था ना, 2 I naught अपॉन ओमेगा. इसको फिर से जो है खुद से करके देख लो अगर तुम लोगों को डाउट है तो. ठीक है, मैं ये लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट. तो हमारा ये आया था 2 I naught अपॉन ओमेगा. ये हमारा है t by 2, तो ये हो गया 2 इंटू ओमेगा को आई कैन राइट एज 2 पाई बाय t. सो t से t कैंसल आउट हुआ, एक 2 से एक 2 कैंसल आउट हुआ, so it becomes 2 I naught upon pi. So the average or the DC value of current for a full wave rectifier comes out to be 2 I naught upon pi, which is 0.636 I naught. ठीक है, 0.636 I naught. This is the average or DC value of current. I hope ये सबको क्लियर है. सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है. जो हमारा न्यूमरेटर है that will come out to be 2 I naught upon omega. तो सब्स्टिट्यूट इंटीग्रल 0 से t by 2 I naught sin omega t dt as 2 I naught upon omega. इसको खुद से भी इंटीग्रेट करके देख सकते हो. sin omega t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos omega t upon omega. Substitute the limits of integration 0 and t by 2, and we know omega is 2 pi by t. Similarly, VDC, the average value of output voltage will be 2 V naught upon pi, which is 0.636 V naught, where V naught is the peak value of the input AC voltage. ठीक है, और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इसी तरीके से इंटीग्रल 0 से t by 2 V naught sin omega t dt divided by इंटीग्रल 0 से t by 2 dt, which is t upon 2. तो बस यहाँ पे I naught की जगह you will get V naught, क्योंकि यहाँ पे हमारी वोल्टेज एट एनी टाइम t है V naught sin omega t. Next we have to find the RMS value of the current. RMS value के लिए this is the formula. इंटीग्रल 0 से t by 2 I naught square sin square omega t dt divided by t upon 2 इन सबका स्क्वायर रूट. ठीक है, which is are this 1 upon, इसको इस तरीके से नहीं लिखना. ठीक है, you have to directly write that IRMS is integral 0 से t by 2 I naught square sin square omega t dt divided by integral 0 से, या टाइम पीरियड is t by 2 dt. ठीक है, और ये सारी चीजें आएंगी हमारी ब्रैकेट की, और ये हमारी आएगी ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, तो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. एंड इंटीग्रल 0 से t by 2 dt हमारा कितना होता है? इंटीग्रल 0 से t by 2 dt हमारा होता है t upon 2. तो ये यहाँ पे आ गया t upon 2. आई होप ये सबको क्लियर है मैंने कैसे लिखा. ये सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा. ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो. IRMS को you have to write that this is equal to square bracket of integral 0 से t by 2 I naught square sin square omega t dt divided by integral 0 से t by 2 dt. ठीक है, फिर इंटीग्रल 0 से t by 2 dt को we can write as t upon 2. ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस टर्म.
कैसे करेंगे? आई नॉट स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है, इट कैन कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होगी? देखो 1/t/2 को आई कैन राइट एज 2/t। यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट किया है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है यहाँ पर आएगा 0 से t/2 आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी सबका स्क्वायर रूट। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आई कैन राइट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें करना है, इट कम्स आउट टू बी t/2। इसका इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी बताया था व्हेन वी वर फाइंडिंग द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, cos 2 ओमेगा टी की वजह से जो इंटीग्रेशन था दैट कम्स आउट टू बी 0, और 1 की वजह से जो हमारा इंटीग्रेशन था वो हमारा यहाँ पे आया t/2। ये 2 और ये 2 जो है हमारा कैंसल आउट होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, t और t कैंसल आउट हुआ, सो आई आर एम एस कम्स आउट टू बी I0/√2। So the average value of the current for a full wave rectifier is 2 I0/pi, and the RMS value is I0/√2। ठीक है, ये हमारी डिफरेंट है फ्रॉम दी हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर हमारी एवरेज वैल्यू आ गई, आरएमएस वैल्यू आ गई फुल वेव रेक्टिफायर की। आई होप सबको क्लियर हो मैंने ये कैसे किया है। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। इंटीग्रेशंस आई होप तुम सबको आते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आई डोंट फील कि कोई इतना डिफिकल्ट है, और इसको मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कैसे इंटीग्रेट करना है। यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट दी limits of integration. Now what next? We have to find the efficiency of a full wave rectifier. And what is the formula of the rectifier efficiency? It is the ratio of PDC to PAC. That means it is the ratio of the output power, output DC power to the input AC power. तो पहले हम input AC power निकालेंगे, the power supplied to the rectifier, वो हमारा क्या होगा? मैंने ऑलरेडी बताया था लास्ट क्लास में, जब हम एसी सप्लाई की बात करते हैं इन दैट केस वी टेक द आरएमएस वैल्यू, और जब हम डीसी कंपोनेंट की बात करते हैं वी टेक द एवरेज और द डीसी वैल्यू। तो एसी इनपुट एसी पावर क्या होगा? आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू पावर क्या होती है? आई स्क्वायर आर। तो आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में? आर एफ प्लस आर एल। सब्स्टिट्यूट आई आरएमएस एज I0/√2 and we will get this expression. Next, the output DC power which we measure across the load resistance RL, that will be I square R. I क्या होगा? I DC. We are measuring the power at the load resistance RL. This is the output DC power measured across the load resistance RL. तो यहाँ पे resistance कितना होगा? RL. IDC is 2 I0/pi. Substitute the value. It comes out to be 4 I0 square RL/pi square. So substitute PAC and PDC in the expression of rectifier efficiency eta. PDC is 4 I0 square RL/pi square into PAC is 2, PAC हमारा कितना हो गया? I0 square into RF plus RL divided by 2. So it comes out to be I0 square will cancel out and it comes out to be 8/pi square into RL/RF plus RL. And in terms of percentage, how we can write it? 8/pi square ko we can write as 0.812. So it becomes 0.812 into RL divided by RF plus RL. In percentage form, we have to multiply with 100. So this gives the percentage efficiency of the full wave rectifier. So it comes out to be 81.2 divided by 1 plus RF/RL%. ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को RL से डिवाइड कर दूंगी जैसे हमने हाफ वेव में किया था, तो ये क्या है हमारी? तो हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है फुल वेव रेक्टिफायर की वो हो सकती है 81.2%। इफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है डायोड का इट इज वेरी स्मॉल देन दैट ऑफ द लोड रेजिस्टेंस, और यू कैन से दैट व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द dynamic forward resistance of the diode. In that case, RF/RL becomes very very less than 1 and we can have the efficiency as 81.2%. But usually क्या होता है in actual practice, so we can say that efficiency जो है it is
less than 81.2%, since if we cannot neglect the forward resistance of the diode in comparison to the load resistance. अब देखो मैक्सिमम रेक्टिफायर एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर की कितनी है 81.2%, और हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है कितनी आई थी 40.6%। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर जो है its efficiency is twice that of a half wave rectifier, and we can say that ये डबल एफिशिएंट है देन दैट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। एफिशिएंसी जो है वो ट्वाइस हो गई एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जाम में जो है इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है दैट शोज दैट द एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस दैट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर, देन इन दैट केस यू हैव टू फाइंड ईटा for both the half wave and full wave rectifier, and then you have to compare both the expressions, and after comparing you can say that the efficiency of a full wave rectifier is twice that of a half wave rectifier. Now the next step is to find the ripple factor. We know by definition ripple factor R is equal to square root of IRMS upon IDC का whole square minus 1. We have already obtained the value of IRMS and IDC. Substitute. IRMS is I naught upon root 2, IDC is 2 I naught upon pi, so it comes out to be 1.11. कुछ याद आया यहाँ से? हमने पहले फॉर्म फैक्टर पढ़ा था। फॉर्म फैक्टर हमारा क्या था? दिस इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। ये वही चीज है ना, वहां पे भी हमारा फॉर्म फैक्टर 1.11 आया था। So this IRMS upon IDC जो है, this ratio is also called form factor, which is the ratio of RMS to the average value. So after substituting the values of IRMS and IDC, we obtained the ripple factor as 0.48. ठीक है, और ये तो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का है। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना आया था? हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर आया था 1.21। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो रिपल फैक्टर है फुल वेव रेक्टिफायर का, इट इज स्मॉल, नियरली हाफ ही हो गया, इट इज स्मॉल एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना रेक्टिफायर हमारा एफिशिएंट होगा इन कन्वर्टिंग AC टू DC वोल्टेज, और जितना रिपल फैक्टर कम होगा दैट मीन्स हमारा जो आउटपुट है उसमें DC कंपोनेंट जो है वो ज्यादा होगा। आउटपुट हमारा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, द AC एंड द DC कंपोनेंट। तो रिपल फैक्टर अगर कम है दैट मीन्स जो फ्लक्चुएशंस या पल्सेशंस या AC कंपोनेंट जो प्रेजेंट है इन दी आउटपुट वोल्टेज वो कम है, और जो DC कंपोनेंट है वो ज्यादा है। देखो इन जनरल R हमारा क्या था? I prime RMS upon IDC, where prime is representing the AC component in the output of a wave, DC is representing the DC component in the output voltage or the output current. तो यहाँ पर हमारा जो रिपल फैक्टर है बाय डेफिनेशन वो होता है I प्राइम RMS अपॉन IDC और V प्राइम RMS अपॉन VDC। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा I प्राइम RMS अपॉन IDC है दैट इज इक्वल टू 0.48, और V प्राइम RMS अपॉन VDC जो है दैट इज इक्वल टू 0.48। सो दिस इंप्लाइज I प्राइम RMS is less than IDC और V प्राइम RMS is less than VDC। मतलब जो हमारे आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट है उसमें हमारा DC कंपोनेंट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द AC कंपोनेंट। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट फुल वेव रेक्टिफायर जो है हमारा वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर इफ वी कंपेयर देयर एफिशिएंसीज एंड द रिपल फैक्टर। Now next thing is the peak inverse voltage. हाफ वेव रेक्टिफायर की पीक इनवर्स वोल्टेज आई थी V0। पीक इनवर्स वोल्टेज जो है मैंने बताया था इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ रिवर्स वोल्टेज व्हिच अ डायोड कैन विथस्टैंड, और इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज व्हिच अ डायोड कैन विथस्टैंड बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्रेकडाउन रीजन। Now we have to find the peak inverse voltage of a full wave rectifier, or you can say that note this thing, this is the peak inverse voltage of a center tapped full wave rectifier।
मैं आगे बताऊंगी। ब्रिज वेव रेक्टिफायर की पीक इनवर्स वोल्टेज डिफरेंट होती है। So this is the peak inverse voltage of a center tapped full wave rectifier. ठीक है, इस तरीके से करना चाहते हो डेरिवेशन तो कर सकते हो, वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब ये आएगा देन यू कैन डायरेक्टली राइट दिस थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज हमारा क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज which each diode must withstand and this is equal to the maximum secondary voltage. हमारा जो secondary voltage था वो क्या था? देखो सेंटर टैप से यहाँ तक की वो मैक्सिमम वोल्टेज V नॉट है, क्योंकि फॉर मैक्सिमा साइन ओमेगा टी शुड बी 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1, और यहाँ 0 से लेकर यहाँ B तक जो हमारी वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? V नॉट। सो टोटल हमारी जो मैक्सिमम वोल्टेज है विच अ डायोड कैन विथस्टैंड इज 2V नॉट। सो हियर द पीक इनवर्स वोल्टेज इज ट्वाइस ऑफ V नॉट। ठीक है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस लाइन, ज्यादा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, so this is about peak inverse voltage. So in a full wave rectifier the peak inverse voltage across each diode is twice the maximum transformer voltage measured from either end to the central tapping. सेंट्रल ट्रैप से इधर एंड तक अगर हमारी वोल्टेज V नॉट है तो इट इज ट्वाइस द मैक्सिमम voltage V naught, that means it is equal to 2V naught. Next the voltage regulation. voltage regulation का मतलब मैंने already बताया था। voltage regulation का मतलब है that VDC for a full wave rectifier should be constant whatever is IDC. जैसे हमने हाफ वेव के लिए डिराइव किया था वैसे ही इसके लिए डिराइव करेंगे। IDC हमारा कितना आया था? 2I naught upon pi. I naught is V naught upon RF plus RL. So this becomes IDC into RF plus RL is equal to 2V naught upon pi. And we know IDC into RL. This is the DC voltage measured across the load resistance RL. So IDC into RL will be equal to VDC. ठीक है, so substitute here. So we get VDC is equal to 2V naught upon pi minus IDC RF. तो ये कहता है VDC जो है वो इक्वल होगा 2V naught upon pi के, मतलब वो मैक्सिमम हो जाएगा इक्वल टू 2V naught upon pi अगर ये वैल्यू जो है 0 हो जाती है। अगर ये वैल्यू जो है निग्लाइजेबल हो गई दैट मीन्स हमारी जो आउटपुट डीसी वोल्टेज है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आईडीसी नाउ एंड इट बिकम्स कांस्टेंट व्हाटएवर इज द आईडीसी एंड वी कैन से दैट आवर आउटपुट डीसी वोल्टेज इज रेगुलेटेड and is having the maximum value equal to 2V naught upon pi. ठीक है, और ये V naught की वैल्यू जो है इसको हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से वी कैन स्टेप डाउन और स्टेप अप द इनपुट वोल्टेज। नेक्स्ट, अगर हमारा जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है डायोड का इफ इट इज नेग्लिजिबल इन दैट केस वी कैन नेग्लेक्ट दिस term and we can have VDC equal to 2V naught upon pi equal to a constant value. Now if IDC increases, if the voltage, if the current across the load resistance RL increases, then the DC output voltage decreases depending upon the value of resistance RF. अगर RF negligible होगा in that case it becomes constant, otherwise it decreases with increase in IDC. So this is about full wave rectifier, or you can say this is about center tapped full wave rectifier. Now the next rectifier is the bridge rectifier, or you can say that bridge wave rectifier. Now what is a bridge rectifier? इसमें basic difference क्या है? Here instead of 2 diodes we are using 4 diodes. This is the circuit diagram of a bridge rectifier. Here we are using 4 diodes D1, D2, D3 and D4. Now इस डायोड की जरूरत क्यों पड़ी? देखो सारी कैलकुलेशंस जो है वो सेम रहेंगी। एग्जाम में अगर सेंटर टैप्ड आता है या ब्रिज रेक्टिफायर आता है तो सर्किट डायग्राम सेम होगा, सर्किट डायग्राम जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, बाकी एक्सप्लेनेशन भी ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगी बाकी, लेकिन जो कैलकुलेशंस है वो सेम रहेंगी। हमारी इनपुट वोल्टेज है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, आउटपुट हमारा DC आएगा विच इज पल्सेटिंग DC इक्वल टू
V naught sin omega t, current होगा I naught sin omega t, where I naught is RF plus, where I naught is V naught upon RF plus RL. ठीक है, सब कुछ हमारा सेम रहेगा. एवरेज वैल्यू हमारी 2I naught upon पाई आएगी. RMS वैल्यू हमारी I naught upon √2 आएगी. रेक्टिफायर एफिशिएंसी हमारी 81.2% आएगी. ठीक है, रिपल फैक्टर हमारा 0.48 आएगा. डिट्टो एक्सप्रेशंस कैलकुलेशन सब सेम है. डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ पीक इनवर्स वोल्टेज का. और ये क्यों डिफरेंट होगा ये मैं अभी समझाऊंगी. ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है. नाउ इसका फायदा क्या है, यूजुअली अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं, वी यूज द ब्रिज रेक्टिफायर इंस्टेड ऑफ सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर. हम ऐसा क्यों करते हैं, ये रेक्टिफायर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर जो है ना, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है टू फाइंड द सेंट्रल टैपिंग. उसको सेंटर टैप करना जो है बहुत मुश्किल होता है फुल वेव सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर को. तो हमें दूसरा ऑल्टरनेटिव चाहिए था. सो ब्रिज रेक्टिफायर इज एन ऑल्टरनेट ऑफ द सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर. हियर क्या है, हमारे पास इनपुट एसी वोल्टेज है, फिर उसको हमने पास किया थ्रू अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. सो इट विल स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज. So let's say the voltage, input AC voltage that is applied to the secondary of the transformer is V is equal to V naught sin omega t. इसका एक और एडवांटेज है, देखो सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में सेंट्रल टैपिंग की वजह से यहाँ पे वोल्टेज जो है वो हाफ हो जाती है. तो हमें जो इनपुट एसी वोल्टेज है जो हमें प्राइमरी पे अप्लाई करना है वो हमारा ज्यादा होना चाहिए. यहाँ पर हमारी वोल्टेज जो है कोई हाफ नहीं होती. सो वी कैन यूज द इनपुट वोल्टेज सिंपली V इज इक्वल, तो हम इनपुट वोल्टेज जो है हमारी उसको बढ़ाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती. ये एक इसका एडवांटेज है. बाद में जो है लास्ट में मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो है उनको डिक्टेट करूंगी, लिख लेना. ठीक है, नेक्स्ट हमने जो है ये इनपुट एसी वोल्टेज जो है इसको अप्लाई की टू द सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. नाउ वी हैव 4 डायोड्स D1, D2, D3 एंड D4. इनको इसी तरीके से जो है असेंबल करना है. सर्किट डायग्राम इसी तरीके से बनाओगे एग्जाम में. नाउ दीज आर कनेक्टेड टू द लोड रेजिस्टेंस RL, जिसके अक्रॉस वी मेजर द आउटपुट वोल्टेज और द करंट. अब इसमें एक चीज का और ध्यान देना है, देखो इसको ब्रिज रेक्टिफायर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे हमने डायोड्स प्लेस करे हैं ना, वो एक तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह हमने प्लेस किए हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, तो इसलिए हम इसे ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं. अब क्या होगा, देखो ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल, ये हमारी इनपुट एसी वेव है. ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल we'll see first, then we'll see during the negative half cycle. पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया. देखो यहाँ पी टाइप रीजन जो है दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, सो दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट. या एन टाइप रीजन जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है, सो दिस इज रिवर्स बायस्ड, सो इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट. नेक्स्ट यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है हमारा, here n type region is connected to the negative terminal, so this is forward biased and will act as a short circuit. Here this p type region is connected to the negative, so this is reverse biased and will act as an open circuit. So now what will be the direction of current, current ऐसे जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये तो ओपन सर्किट है, यहाँ करंट जा नहीं पाएगा, ऐसे जाएगा. फिर करंट यहाँ पे भी नहीं जा सकता क्योंकि ये डायोड भी नॉन कंडक्टिंग है, तो करंट यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे. तो RL के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, उसकी ये डायरेक्शन है. नेक्स्ट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल. ठीक है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा ये जो एक एक जो टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, ये टर्मिनल हमारा नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया. ठीक है, तो हमारा अब ये वाला डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, दिस विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट. हियर एन टाइप रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, सो इट विल एक्ट एज अ फॉरवर्ड बायस्ड एंड एन ओपन सर्किट. Here this diode will not conduct, it will act as an open circuit, and this diode will conduct. Here n type region, here p type region is connected to the positive terminal, so this will conduct and act as a short circuit. So here diode D1 and D3 will not conduct and will act as an open circuit,
and D2 and D4 they are reverse, they are forward biased. So diodes D2 and D4 will conduct and act as a short circuit. So now what will be the direction of current? ऐसे गया current, फिर ऐसे गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये कंडक्ट नहीं कर रहा, तो करंट हमारा कैसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ये कंडक्ट नहीं कर रहा, फिर ऐसे चला जाएगा। तो आरएल के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन क्या हुई, ये हुई। तो मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के ही केसेस में जो करंट है इट इज यूनिडायरेक्शनल अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL. So we can say that the input AC voltage is converted into pulsating DC voltage. ठीक है, और pulsating DC आउटपुट वोल्टेज हमारी क्या आएगी, इस तरीके से आएगी, V is equal to V naught sin omega t, and here also the time period is T by 2. The time taken by this voltage to complete one cycle is T by 2. After T by 2 the cycle is keep on repeating. ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो मैंने अभी समझाया ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। तो ये क्या कहता है, now the complete mathematical analysis of a bridge rectifier is similar to that of a center tapped full wave rectifier. एफिशिएंसी भी वही रहेगी, रिपल फैक्टर भी वही रहेगा। यहाँ बुक में एक गलती है, पीक इनवर्स वोल्टेज सेम नहीं रहेगा। ठीक है, ये कहता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर की जो कैलकुलेशंस है वो वही रहेंगी जो सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर की हैं, जहां पर हमने सिर्फ 2 डायोड यूज करे थे। सारी चीजें सेम रहेंगी एक्सेप्ट पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज डिफरेंट होगा, क्यों होगा ये देखो मैंने यहाँ समझाने के लिए ऑलरेडी ये बना भी रखा है। पीक इनवर्स वोल्टेज वो वोल्टेज होता है विच अ डायोड कैन विथस्टैंड, ठीक है, बिफोर दिस इज अ मैक्सिमम वोल्टेज which a diode can withstand before entering into the breakdown region, or you can say that this is the maximum reverse voltage which a diode can withstand. So diode has to be forward biased, so diode has to be reverse biased. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एक पर्टिकुलर साइकिल कंसीडर कर लो, या पॉजिटिव या नेगेटिव। चलो हमने नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर कर लिया, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास रिवर्स बायस्ड कौन कौन से डायोड्स हैं, D1 है और D3 है, ठीक है। D2 एंड D4 आर फॉरवर्ड बायस्ड, D1 एंड D3 आर रिवर्स बायस्ड। तो हमें ये फाइंड करना है D1 और D3 डायोड्स जो हैं मैक्सिमम वोल्टेज जो है कितनी विथस्टैंड कर सकते हैं ये बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्रेकडाउन रीजन, और यू कैन से दैट वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज which diode D1 and D3 can withstand when they are in reverse biased mode. A पॉइंट जो है मेरा ये है, ये C पॉइंट मेरा ये है। अब देखो अगर ये डायोड जो है ये दोनों हमारे रिवर्स बायस है, ठीक है, ये दोनों हमारे फॉरवर्ड बायस हैं। अगर ये फॉरवर्ड बायस हैं तो दे आर एक्टिंग एज शॉर्ट सर्किट, मतलब दे आर एक्टिंग एज अ सिंपल वायर। एक वायर है हमारी सिंपल, ठीक है, यहाँ पर भी हमारी एक सिंपल वायर है, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, एक वायर हो गई सिंपल, और यहाँ पे एक डायोड कनेक्टेड है। तो इसको मैं इस तरीके से बना सकती हूँ, एक वायर है और एक ये डायोड कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये एक बस वायर है और इसके बीच में एक डायोड कनेक्टेड है, एक वायर है इसके बीच में एक डायोड कनेक्टेड है, ठीक है। वोल्टेज हम सप्लाई कितनी कर रहे हैं अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V हमारा मैक्सिमम कब होगा, व्हेन साइन ओमेगा टी इज 1. So the maximum voltage that can be applied across the secondary of the transformer is V naught. तो मैक्सिमम वोल्टेज V naught है। दोनों डायोड जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो V naught है मैक्सिमम, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी मैक्सिमम V naught है। दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। जब दोनों डायोड जो है पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो दोनों की अक्रॉस जो है वोल्टेज सेम होती है। जब यहाँ पर जो हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो V नॉट साइन ओमेगा टी है, वो मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी हमारा 1 होगा, दैट मींस व्हेन V इज इक्वल टू V नॉट। अब V नॉट वोल्टेज जब हम मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ अप्लाई करेंगे, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी। तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V नॉट है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V नॉट है। सो द मैक्सिमम वोल्टेज विद दैट ईच डायोड कैन विथस्टैंड बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्रेकडाउन रीजन इज V नॉट। तो यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज V नॉट होगी, 2 V नॉट नहीं होगी,
क्योंकि इस केस में जो दोनों रिवर्स बायस्ड डायोड्स हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। नेक्स्ट, the advantages and disadvantages of a bridge wave rectifier over the center tapped full wave rectifier। देखो एडवांटेज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर हमें ये जो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफॉर्मर जो हम यूज करते हैं वो लेस कॉस्टली है। क्यों? द ट्रांसफॉर्मर इज लेस कॉस्टली, इसको लिख सकते हो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये, in this a smaller transformer may be used than that in the full wave circuit of the same output। क्यों? The transformer is less costly as it is required to provide only half the voltage of an equivalent center tapped transformer used in a full wave rectifier circuit। तो सेंटर टैप्ड हमारा ट्रांसफॉर्मर था, वहां पर वोल्टेज हाफ हो जाती है। तो अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर स्मॉलर ट्रांसफॉर्मर हम यूज कर सकते हैं, और स्मॉलर ट्रांसफॉर्मर जो है दे आर ऑब्वियसली लेस कॉस्टली। और हम क्यों यूज कर सकते हैं? एज इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ओनली हाफ द वोल्टेज ऑफ एन इक्विवेलेंट सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। And the major advantages in bridge rectifier, no center tap is required on the transformer, or you can say that a transformer without a central tap is used। Okay, next, a suitable bridge rectifier when combined with filter circuit can be used as a battery eliminator which supplies DC voltage almost free from ripples। जितना रिपल फ्री होगा डीसी वोल्टेज, मतलब उतना ही कम उसमें एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। तो यूजुअली जो हम रेक्टिफायर यूज करते हैं वो ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको जब कंबाइन करेंगे विद फिल्टर, फिल्टर जो है वो हेल्प करेगा फर्दर रिपल्स जो है उनको कम करने में। अब नेक्स्ट क्लास से हम फिल्टर्स ही पढ़ेंगे। तो फिल्टर्स का बेसिकली वर्क क्या होता है, रेक्टिफाइड जो हमारा आउटपुट होता है, मतलब जो रेक्टिफायर से हमारा पल्सेटिंग डीसी आउटपुट आया है उसको अब हम फिल्टर के इनपुट में लगाते हैं। फिल्टर क्या करता है, ये जो पल्सेटिंग डीसी आउटपुट है इसमें से पल्सेस को रिमूव करता है। जितने मैक्सिमम पल्सेस या फ्लक्चुएशंस को फिल्टर रिमूव करेगा उतना ही स्टडी हमारा आउटपुट डीसी होगा। ठीक है, हमें अब डीसी आउटपुट को स्टडी करना है, कांस्टेंट करना है, मतलब हमें उसमें से फ्लक्चुएशंस या पल्सेशंस को निकालना है, एसी कंपोनेंट को निकालना है। दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स। ठीक है, एंड द ब्रिज circuit is particularly suitable for high voltage applications। तो बेसिकली ना इसके 3 एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज यहाँ पर हमें कोई सेंटर टैप करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा एडवांटेज, स्मॉलर ट्रांसफॉर्मर जो है वो हम यूज कर सकते हैं, एंड दैट ट्रांसफॉर्मर इज लेस कॉस्टली। वन वी कैन से दैट यहाँ पर जो है हमें आउटपुट टर्मिनल जो है उसको ग्राउंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आउटपुट टर्मिनल जो है हमारा, मैं यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है इसको हम ग्राउंड करते हैं। ठीक है, जब हम सेंटर टैप यूज कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे वो ग्राउंडेड नहीं दिखा रखा। ठीक है, जब ब्रिज वेव रेक्टिफायर हम यूज करते हैं वहां पे हमें कोई ग्राउंड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये यहाँ पर सर्किट को दिखा नहीं रखा, बाकी अगर तुम लिखना चाहो तो ये एडवांटेज लिख सकते हो, दैट फॉर अ ब्रिज रेक्टिफायर आउटपुट टर्मिनल जो है इट इज नॉट ग्राउंडेड। ठीक है, नाउ डिसएडवांटेज क्या है इसको लिख लो। इट हैज ओनली वन डिसएडवांटेज, that it uses 4 diodes as compared to 2 diodes for a center tapped full wave rectifier। I am repeating again, it has only one disadvantage, that it uses 4 diodes as compared to 2 diodes for center tap full wave rectifier। लेकिन जो हमारा ये एक ही एडवांटेज है ये भी ओवरकम हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ready availability of low cost silicon diodes, this bridge rectifier is more economical
despite its requirement of 4 diodes. ठीक है. Moreover, PIV रेटिंग जो है ब्रिज रेक्टिफायर की, पीक इनवर्स वोल्टेज जो है ब्रिज रेक्टिफायर की इज ओनली half of that of a center tapped full wave rectifier. So this is also advantage. ये advantage में note down कर सकते हो. So because of so many advantages of a bridge rectifier, we can neglect the disadvantage of using 4 diodes instead of 2 in the bridge rectifier circuit. ये एक ही disadvantage है हमारा, इसको हम ignore कर सकते हैं because of so many advantages of a bridge rectifier circuit over center tapped full wave rectifier circuit. और ये जो हमारा डिसएडवांटेज है ये भी ओवरकम हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ द लो कॉस्ट सिलिकॉन डायोड्स. ठीक है. सो दिस इज अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द फिल्टर्स. ठीक है. एग्जाम में फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर जो है ये आता रहता है फ्रीक्वेंटली, और क्वेश्चन जो है यूजुअली इस तरीके से आ जाते हैं, या तो आ जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर को पूरा एक्सप्लेन करो, फुल वेव रेक्टिफायर को पूरा एक्सप्लेन करो, या ऐसा आ सकता है दोनों को कंपेयर करने के लिए कि शो दैट द रिपल फैक्टर ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिपल फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर. और ये भी आ सकता है शो दैट द एफिशिएंसी एंड रिपल फैक्टर ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर. ठीक है. तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और ये तुम्हारी मर्जी है एग्जाम में. अगर सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर लिखा है तो तुम कोई भी रेक्टिफायर यूज कर सकते हो कैलकुलेशंस के लिए, ईदर सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर. कोई भी सर्किट जो है वो तुम बना सकते हो एग्जाम में. इट्स अप टू यू अगर सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर लिखा है तो. ठीक है. सो नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद फिल्टर्स.